So first we looked at कि personality आपको basically जो option है of doing business, why and how it should be given different weightage as compared to a normal job. आपको किस तरीके से उसको judge करना है is what we looked at. So we looked at a thing where we said that you know what you have to look at in such a way that your personality is perfect as per what you're looking at. So when I say personality, हमने देखा था कि how are attributes of what you're meant to do, आप किसके लिए बने हो, that will basically define your pathway of doing a right business. So like you said, everyone said not everyone is meant to do everything. I didn't mention an example yesterday. So हम हमेशा हर इसमें बड़े-बड़े examples बड़े-बड़े institutes में या probably seminars में we give example of Apple, right? See, look at how Apple has evolved. Apple computers was made actually started by two guys. So there was Steve Wozniak and Steve Jobs, right? So Wozniak is वो जो technical बंदा है वो Wozniak है. He was the one who actually made computers. Steve Jobs was just good in talking and getting across the market, or rather understanding कि market को क्या चाहिए. इसकी वो उसकी personality उसके लिए meant थी. Steve Jobs never knew how to code, never knew how to assemble a PC. He just knew इसको बेचना कैसे, right? Steve Wozniak knew how to make a computer. From day one till 20 years down the line, he could make computers the best design, whatever Steve Jobs wanted. But very few people know Steve Wozniak का नाम, right? Steve Wozniak is still alive, he is still a billionaire, but बहुत कम लोगों को उनका नाम पता है. ये रीजन ये है कि स्टीव वॉज़नियाक को ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मिलना पसंद नहीं है, उनको अपना काम करना पसंद है. इनफैक्ट उनका ऑफिस भी जो है अभी भी एप्पल में जो था वो बेसमेंट में बहुत एक छोटी जगह पे था, whereas he was the co-founder of Apple. बट हमको पब्लिकली क्या दिखता है, स्टीव जॉब्स एवरीवेयर. सी द डिफरेंस इन पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, राइट? एक दूसरे की पर्सनालिटी समझ गए, वो कोर समझ गए मेरा क्या है, तो वो चीज तेरा जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस कर, ये जो मेरी चीज अच्छी है मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा. When we look at entrepreneurship, हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान हैं, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ये भी सब संभालूंगा वो भी संभालूंगा. ऐसा नहीं होता है. That's not what your personality is meant for. You are supposed to manage and understand everything, but not know everything. So when I say know, that means the core knowledge. मेरी बैकग्राउंड है कॉमर्स के एडवर्टाइजिंग की. आप मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैं जाके एक ऐप का कोड्स लिख के आऊं. अगर आप हो इंजीनियर, मैं आपको बोल नहीं सकता कि जाके बैलेंस शीट टैली करो, ये आपका काम नहीं है. बैलेंस शीट टैली होने से आपका क्या फायदा होने वाला है इज व्हाट यू हैव टू फिगर इट आउट, राइट? आउटपुट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का कंट्रोल होना चाहिए, बट वो प्रोसेस में इज नो वैल्यू एडिशन. As a small practice, what you have to do is एक पूरे दिन में एक 24 घंटे में बारिंग और 8 to 9 hours का स्लीप, आप पूरे टाइम कितने ऐसे एक्टिविटीज करते हो जिससे वैल्यू एडिशन होता है. When I say value addition, in a direct एक्टिविटी करने से मेरे बैंक में पैसा जमा होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रनिंग अ शॉप, अगर मेरी खुद की दुकान जो थी पतंजलि की, मैं रियलाइज करा मैं काफी बिजी था. बट व्हेन आई रोट डाउन कि मेरा वैल्यू एडिशन किस चीज में हो रहा तो बहुत ही कम था, हार्डली 3 घंटे था. कैन यू बिलीव इट? ओनली 3 hours. मैंने क्या लिखा था एक्टिविटी में? पैसे काउंट करना, बैंक में जमा करना, ऑर्डर रिलीज करना. इन सब चीजों से डायरेक्ट वैल्यू एडिशन कहाँ थी? वो तो कोई और भी कर सकता था. मेरा काम क्या था? आई हैव टू, मेरा दिमाग लगा के आई हैव टू थिंक ऑफ सच अ वे ताकि मेरी ग्रोथ हो सके, मैं पैसे ज्यादा कमा सकूं, राइट? That is what the personality of an entrepreneur should be. If that is going to match with your personality, then it's a perfect marriage, right? Then we looked at risk parameters, we looked at drive. Drive is basically, I do give an example of Lata Mangeshkar and Sachin Tendulkar. आपको अपनी ड्राइव बनानी है. It takes years to reach there, but आप जब जिस चीज में अच्छे हो, एक बार वो चीज आप समझ गए, उसको पकड़े रहना, इतना अच्छा करना कि ताकि लोग आपको उस चीज से पहचाने. So it's a very, you have to understand drive in such a way when people start talking about it. So हर एक शहर में there is one मिठाई वाला जो बहुत फेमस हो जाता है, हर एक शहर में एक बेकरी वाला होता है जो बहुत फेमस हो जाता है. Understand their drives. They did it in such a way, or their ancestors did it in such a way
that लोगों के दिमाग में वो बात बैठ गई, right? And last we looked at is perpetual existence. We looked at how and why it is different. Then we looked at 3 examples. रितेश अग्रवाल का ओयल का था, पेटीएम का जो बैंक्रप्सी से ऊपर आके हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप फिलहाल इंडिया में है. Then we looked at free charge, how Kunal Shah has reached from 23 businesses to 24 being a multi-crore, 1,000 crore acquisition deal, right? We looked at why businesses fail, right? Working on foundation, we looked at why it is important, right? So foundation ka, why we exactly the crux of doing this is we don't want you to fail. That's the reason we are building this. ये जो चीज मैंने आपको 5 steps हैं, ये 5 steps के अराउंड ही आप हमारा पूरा अगला 7 दिन जाने वाला, including today, so that's 8 days. But the whole it's going to roll around how we are not going to fail, right? We are preparing you not to fail that much, right? So we looked at a couple of jargons. We looked at how valuation आज के ज़माने में इसका meaning इतना different क्यों हो गया. I will tell you and focus more on valuation and how people are looking at perceiving valuation as a figure, right? Then we looked at how we should make idea. जब मैंने basically काम शुरू किया था, I just made a list of things which I don't like. This industry में मुझे घुसता नहीं है. Automatically you get a list of चीज जो आपको बहुत पसंद है और जिसके ऊपर आप basically करियर बना सकते हो, right? We looked at 3 attention spans, basically passion, avenues and knowledge. उन तीनों चीजों को आपको हाई, लो और एवरेज के बेसिस पे उसको तराजना है. We looked at then 4 things. Need is basically आपका जो आइडिया है वो कौन से पेन एरिया को ज्यादा फोकस कर रहा है. We looked at industry, how you supposed to define it wide. Third, we looked at revenue. Revenue is basically पैसा कहाँ से आने वाला है, figure that out. And third is target. Never restrict yourself like a horse. आपकी विजन वाइड रखिए. कस्टमर कहाँ से भी और कभी भी आ सकता है. आप just you have to reach the customer. And last is how is the business plan. तो हमने बेसिक 3 चीज देखी थी कि कभी उल्टा शुरू मत कीजिए. बिजनेस बोला तो पहले बोलता है कि पहले पैसे इकट्ठा करो, फिर प्रोडक्ट को बनाओ, टीम को इकट्ठा करो और फिर कस्टमर्स के पास जाओ. नहीं, उल्टा काम करो. पहले कस्टमर्स के पास जाओ, उनको पूछो आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है क्या, कितनी जरूरत है, आप कितना पैसा दोगे प्रोडक्ट के बारे में. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू पे सो डेस्परेटली, फिर मैं टीम बांध दूंगा, फिर मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, right? So we work around ulta exactly. Then this is where we stopped yesterday. Now why this we are showing this is just your product has to go through this, right? मेरे पास जो आइडिया है मुझे उसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करना है. So brainstorming जब आपको करना है, just make sure you don't brainstorm with 2 category of people. One category, the first category is your friends. फ्रेंड्स 2 तरीके के होते हैं. एक जो है जो आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, जो बोलेगा बहुत ही अच्छी आइडिया, सो इग्नोर दैट बिकॉज वो जेन्युइन फीडबैक नहीं है. दूसरा होगा जो जेलस टाइप करेगा, बोलेगा बहुत ही बकवास आइडिया, नहीं जमेगा, वो आपको डिसहार्टन करेगा, सो इग्नोर दैट, राइट? एंड सेकंड कैटेगरी इज योर फैमिली. डू नॉट डिस्कस मच विथ योर फैमिली. योर फैमिली इज कंडीशन टू लव यू. हर माँ को लगता है मेरा बच्चा जो है शाहरुख खान है, कुछ गलत नहीं करेगा, सो डोंट डिस्कस विद देम. बहुत सीधी बात है. अगर मैं एक वुमेन पर्स बना रहा हूं तो मैं मेरे दोस्तों को जाके नहीं पूछूंगा तुमको ये पर्स कैसे लग रही है. अगर वुमेन पर्स है, आई विल आस्क माय फ्रेंड्स व्हिच आर गर्ल्स, माय वाइफ, माय मदर, माय कजिन सिस्टर्स. आई विल आस्क दोज काइंड ऑफ पीपल जो यूज करते हैं. और रादर इनको छोड़ के भी जो वुमेन है जो रेगुलरली बैग्स खरीदते हैं, यूज करते हैं, वो मेरे टारगेट मार्केट होंगे. अगर यहाँ वहां बात करोगे अपने कंफर्ट के हिसाब से, यू विल नॉट गेट अ गुड फीडबैक. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग विल ऑब्वियसली हैपन विद योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. ये कस्टमर्स आपने ढूंढ लिए, आपको इमीडिएटली उनके साथ वैलिडेट करना है. यू हैव टू गिव योर प्रोडक्ट टू देम सो दैट दे कैन स्टार्ट टेस्टिंग इट. एक बार वो इस्तेमाल करेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, आप एक प्रोडक्ट डिजाइन कर पाओगे. एक बार वो प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, आप लॉन्च कर पाओगे. जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब एक्चुअली एक प्रोडक्ट का काम शुरू होता है. दैट्स हाउ योर cycle starts. कोई भी प्रोडक्ट आज के दुनिया में if it does not get right inputs to innovation, it will not grow. See, अगर आपका जो year on year revenue अगर stagnant है तो आप grow नहीं कर रहे हो. अगर आप grow नहीं कर रहे हो तो आप business नहीं कर रहे हो, right? That means you're doing some activity. Growth can be in terms of number of users also.
नॉट ओनली मनी बट ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। बढ़ती का नाम जिंदगी जो कहते हैं वो बिजनेस के लिए बहुत एप्लीकेबल है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको पसंद है, यू आर नॉट ग्रोइंग। फॉर ग्रोथ टू हैपन यू नीड टू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के बिना आप ग्रो नहीं हो सकते। इनोवेशन जो है वो हाथ से डायरेक्टली हो नहीं सकता। इनोवेशन जो होता है वो फीडबैक से ही होता है। इनोवेशन इज डन ओनली थ्रू फीडबैक। टू गिव यू एन एग्जांपल, स्मॉलेस्ट थिंग, हम सब ने गवर्नमेंट ऑफिसेस में वो रफ वुडन चेयर्स देखी है, यू नो, हर गवर्नमेंट ऑफिस में रहता है। दोज आर हैवी, अनकंफर्टेबल, बट हर ऑफिस में रहते थे। वहां से लेके रिक्लाइनर्स, कुशन वाले कंफर्टेबल चेयर्स हम लोग क्यों आए? किसी ने तो उसको फीडबैक दिया होगा, ergonomically ग्रो किया होगा, और वो प्रोडक्ट आज यहाँ पर बना हुआ है। हम सब लोग यहाँ व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में कुछ टाइम पहले देयर वाज नो अबाउट, जब जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था, देयर वाज नो लोकेशन शेयरिंग, देयर वाज नो एक्सेल शीट शेयरिंग, देयर वाज नो वीडियो कॉल्स। किसी ने तो उसको फीडबैक दिया ताकि वो ग्रो हो सका, राइट? सो फॉर यू टू वर्क, आपका काम, जब आपका यूजर जब बेस बन जाता है, आपका काम होता है उनसे जाके बात करना, उनसे फीडबैक उठाना कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे परसीव करते हो, कौन से प्रोडक्ट को और पसंद है, क्यों पसंद है, कैसे यूज करते हो। फॉर दैट टू हैपन यू टू टॉक टू कस्टमर्स मोर, राइट? क्या आपका आइडिया डेस्परेशन क्रिएट कर सकता है? ये आपको फिगर आउट करना है, राइट? उस चीज में आपको तराजना है। नेक्स्ट स्टेप इज, इस पे और मैं चीज क्या बढ़ोतरी कर सकता हूँ, हाउ आई कैन इनोवेट एंड गेट मोर सर्विसेज टू दिस, राइट? उबर से उबर ईट्स, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप चैट, वीडियो चैट, अभी व्हाट्सएप इज कमिंग टू पेमेंट्स आल्सो। उस चीज तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, राइट? सो ये चीज आप सबको फिगर आउट करनी है आपकी बेसिकली आइडिया के लिए। एंड लास्ट इज इनोवेशन एस्पिरेशंस। कहाँ तक मैं इसको दो प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ जोड़ सकता हूँ। सो अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं इसको, अगर मेरे को सेगमेंट करना है मेरे मेरे ब्रांड वैल्यू, ब्रांड मैसेज को अक्रॉस ऑल, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? दैट यू हैव टू फिगर इट आउट। फॉर एग्जांपल, उबर से मैं अगर जो डिलीवरी सर्विस थी, मैं उबर इट से कैसे पहुंच सकता हूँ, राइट? सो यू हैव टू फिगर आउट मल्टीपल सोर्सेस पे आप कैसे पहुंच सकते हो। आई जस्ट गिव दिस, ये हमने कल किया था। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट आइडा के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन जो है, आई वांट टू शो, ओके, आई वांट टू शो स्मॉल वीडियो। अंडरस्टैंड ये वीडियो का मतलब क्या है, उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव इंट्रोडक्शंस। सो व्हाटएवर आपकी जो भी आइडिया है, देयर इज अ पर्सन हु इज डिफाइंड दिस एज एन एक्सपोनेंशियल आइडिया। सो नॉर्मल आइडिया और एक्सपोनेंशियल आइडिया में डिफरेंस क्या है? There is a basic characteristics of exponential. Exponential is 0 to 1000 in some days, right? मेरे पास आज एक यूजर है, 10 दिन के बाद मेरे पास 15,000 यूजर है। एग्जाम्पल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, राइट? जूम, आज हम लोग सब जूम पे हैं। 0 to 1000, 10,000 in number of days, not even weeks, years, months, in number of days. That quick. That's called exponential growth. आपके पास जो भी एग्जाम्पल्स है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, ऑब्जर्व कीजिए कि उनका आइडिया कैसा ग्रो हुआ था। आई विल गिव एन एग्जांपल। एयरबीएनबी, ओयो रूम्स, वर्ल्ड के टॉप नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ होटल चेन्स, राइट? ओयो रूम्स के पास 3-3.5 लाख होटल्स हैं। दे आर अक्रॉस मोर देन 26 कंट्रीज। दे डोंट ओन अ सिंगल प्रॉपर्टी। They don't own a single property. Airbnb, they are across more than 7.5 lakh households across the world, more than 34 countries. उनके पास खुद की एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। उनके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म है, लोगों को जोड़ते हैं और ग्रो करते हैं, राइट? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए अगर आप प्रोडक्ट में अटक गए तो आपकी ग्रोथ जो है वो प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। To give you one more example, Instagram ऐप है बट खुद के फोटोज एक भी नहीं है। आपको फोटो डालते रहना है और लोगों के साथ शेयर करते रहना है, राइट? व्हाट हैज हैपेंड? इट गोज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। सब लोग आते हैं, डालते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सेम विद टिकटॉक, सिर्फ प्लेटफॉर्म है, खुद का वीडियो एक भी नहीं है। बस जो भी वीडियो डालोगे ग्रो होता जाएगा।
So now what we're going to do is I want to have a basic introduction. All the members. Introduction में आपको तीन चीजें कहनी है. First of all is your name. Second is आपका क्या business है, क्या idea है. So if you're already doing a business, what was the basic idea और idea से लेकर आप business तक कहाँ पहुँच चुके हो. अगर आपके पास business नहीं है, सिर्फ दिमाग में एक idea जिसको आपको business करना है, mention the idea. And last is the vision. आप क्या चाहते हो? ये जो business है, 10 years from now, where do you want to reach, right? If someone is doing business in Mumbai, they want to reach all over India, then probably all over globe. That is the vision of the product, right? So that's that vision you have to share in one sentence. First of all, you should have potential market. When I say potential market, that means you, your family, plus 10,000 other people, right? When you have to look at it in such a way, इस जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ उसके लिए हर जगह पे कितने लोग हैं, you should have at least a lakh people in your mind in your city first. Then at least you look at country, it should have been crore. If you look globally, you should have at least more than 10 crores plus, right? Second is relevant appeal. इन जिस ऑडियंस को मैं सोच रहा हूँ टारगेट करने के लिए, उनके पास उनको इसकी सच में जरूरत है क्या नहीं. Third is defining which part of need you are. Third is scalability. Fourth is scalability. कितना scalable है. So when I say कितना scalable, that means how fast can I reach from 0 to 1,000, 10,000, 1 lakh, 1 lakh से 1 करोड़. Right? Next is finance power. क्या खर्चा कितना लगने वाला है. God growth perspective. That is competitive edge. कहाँ पर मेरा competition से मैं अलग हूँ. Then is your last is goal alignment. Goal alignment is basically आप और आपका business वो कितना aligned है वो देखने के लिए आपको figure out करना पड़ेगा, right? So let's define as to what, defining potential market. How to define potential market? First of all, you have to understand जिस city में आप रह रहे हो उसमें कितने users हैं, right? So if I'm looking at perspective of how many people would actually go, let's मैं अगर पुनीत का example पकड़ता हूँ, ऑफिस में घर से न डब्बा लाने वाले लोग कितने हैं. दैट मीन्स स्विगी या बाहर या नीचे जाके खाने वाले लोग कितने हैं सिर्फ थाने में. अगर ये फोकस करना पड़ेगा तो दैट्स द नंबर यू शुड कम आउट. ट्राई टू हैव अ नंबर. अप्रोक्सीमेट भी चलेगा बट एक नंबर होना बहुत जरूरी है. सिटीज वेयर द डिमांड इज वेरी वेरी हाई. सो फिगरिंग इट आउट कि ये जो मॉडल मेरे दिमाग में है उसका डिमांड कहाँ ज्यादा है. अगर फॉर एग्जाम्पल कमिंग बैक टू पुनीत एग्जाम्पल ओनली, इफ यू सी कि थाने में तो काफी लोग खुद ही दवा लेके आते हैं, बट आई हैव फिगर्ड आउट मे बी पुणे में आईटी पार्क एरिया में कोई ज्यादा लोग दवा लेके नहीं आता. सब लोग बाहर से मंगाते हैं, नीचे जाके खाना खाते हैं. सो दैट इज वेयर माय पोटेंशियल इज मोर, राइट? इट्स लाइक इफ यू हैव अ वाइन फैक्ट्री एंड यू ट्राइंग टू ओपन इन अहमदाबाद, you don't have potential customers there, no? It's a dry state. It's like that. You have to figure out कि जहां मेरे customers हो वहां पर ही पहुंचना मुझे ज्यादा applicable लगता है कि नहीं मुझे figure out करना है. अगर उमेश को ऑर्गेनिक समोसे बेचने हैं पर यहाँ पर ऑर्गेनिक खाने वाले लोग नहीं है तो कहाँ है ये उमेश को figure out करना है, right? Similar states. ये अगर मेरा एक कैटेगरी समझ चुका हूं तो मेरे को ग्रो करने के लिए और दूसरा स्टेट कहाँ है. सिटी तो फिगर आउट कर लिया, स्टेट कहाँ है, अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया में इतना कि इसके यूजर्स कहाँ रहेंगे. एंड लास्ट इज ग्लोबली हाउ मेनी यूजर्स आई हैव, राइट? हाउ मेनी यूजर्स आई हैव ग्लोबली, राइट? आप किस चीज में फिट होते हो, राइट? वेरी क्लियरली. अगर आपका ब्रांड जो है वो बेसिक है, जिनका नीड बहुत हाई है, आपका प्राइसिंग बहुत कम रहेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट मुकुंद सर एग्जाम्पल ऑल्सो. अगर मैं फीड बना रहा हूं जिसकी प्राइसिंग बहुत कम है, वो बहुत बेसिक रेंज में आता है, तो मेरा रिपीट कस्टमर्स बहुत हाई होंगे. लुक एट दोस रेगुलर प्रोडक्ट्स व्हिच यू बाय. सॉल्ट, राइट? शुगर, व्हीट. इन मुकुंद सर के इवन द फीड जो आपको मिलता है वो बहुत बेसिक है जो चीज लगती है, बट उसी चीज में मुकुंद सर कहते हैं मैं थोड़ा प्रीमियम बनाऊंगा, जो प्रीमियम कस्टमर्स है उनके लिए मैं बनाऊंगा. That would become in desire and want, right? So the moment you define your needs basis the usage and how much value addition you're going to do,
you can define different customers, right? To give an example, मारुति जो एकदम बेसिक था गाड़ियों के मॉडल में, they have evolved into मारुति नेक्सा. क्यों? बिकॉज उनको एक थोड़ा प्रीमियमनेस डिफाइन करना था. द सेम वे अमूल ऑल्सो हैज बेसिक अमूल जो आता है प्रॉब्ली 18 या 17 रुपए लीटर को. दे हैव अमूल गोल्ड जो जाता है प्रॉब्ली आई थिंक 60 रुपीज 60 रुपीज लीटर तक जाता है, राइट? There's a difference. Why there's a difference is because they're defining basis what the product is. आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट है सबके लिए, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते. अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स है, तीनों प्रोडक्ट के आपको वेरिएंट डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? We looked at Ashish's example also. If Ashish has variety of products in his existing business, आशीष को डिफाइन करना होगा ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना, ये बेसिक लोग वैसे भी लोग लेते ही है, जैसे उसका लाइट्स का कुछ हो गया प्रॉब्ली इन दोस पर्सपेक्टिव, बट ये जो है तो ये थोड़ा प्रीमियम है, इसका मुझे प्राइसिंग और इवन पैकेजिंग भी प्रीमियम करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड व्हाट योर आइडिया इज गोइंग टू डू, राइट? मैं इस टाइम पे इस लेवल पे पहुंच रहा हूँ कि आपको बेसिक इसको डेफिनेशन ऑफ नीड आपको करनी पड़ेगी, राइट? थर्ड इज थिंक ऑफ योर आइडिया एज एन एक्सपोनेंशियल आइडिया. मैं इस मेरे बेसिक आइडिया में कैसे ट्विकिंग कर सकता हूँ कि मैं 0 to 1000, 0 to 100, 0 to 1 lakh कैसे पहुंच सकता हूँ? How fast can I reach that, right? So we looked at example of Vivek where he wants to open a QSR. In his perspective, वो कौन सी चीज कर सकता है जिससे उसके पास फर्स्ट मंथ में more than he should have 1 lakh customers, right? ऐसी कौन सी QSR में चीज वो कर सकता है ताकि वो चीज लोग उसके आके खरीद सके. That becomes your speed. Reach. How do I reach at multiple people? Understand word of mouth is the only way to strongest way of reaching market. If you look at all these products, Airbnb, WhatsApp, TikTok, Uber, इन लोगों ने कभी भी ज्यादा एडवर्टाइज किया नहीं, वर्ड ऑफ माउथ से फटाफट ग्रो हुआ. If you want to grow even faster, you have to understand where and how to reach, right? So look at your backend. So if coming to Amit's example, if Amit thinks of reaching to only senior citizens, if he thinks मुझे उसके ऊपर ही focus करना है, so think in those perspective कि अगर वो growth होने वाला है तो मेरा आइडिया कितना फटाफट word of mouth से पहुंच सकता है. Will I only focus on senior citizens? So senior citizens, will they talk amongst each other? Will I create so much value ताकि वो मेरे लिए recommend कर सके? अगर वो हो सके कितना फटाफट रीच हो सके. फटाफट हो भी गया, मेरा बैकएंड कितना स्ट्रांग है उनको सर्विस करने के लिए, राइट? अगर मेरे पास आ जाते हैं 1000 कस्टमर्स पर डे फॉर अ गुड 1 मंथ, मैं उनको सर्विस कर पाऊंगा क्या नहीं? इज व्हाट यू लुक एट स्केलेबिलिटी, राइट? Zoom जो है उसके पास थे इन ऑल यूजर्स 1 million in all. After the lockdown, they have a daily new users of 500,000 daily, right? Understand the growth, exponential growth Zoom has had. Whatever may be the reason, but look at what they have reached so far, right? Financial. You have to figure out in your financial ways, or when you look at finance or purely money ways, ये जो idea है, इसमें मार्जिन कितना मिल सकता है मुझे. सो मार्जिन एंड बेसिक कैलकुलेशन क्या है? ये चीज बनती है 100 रुपए की, क्या मैं इसको 500 में बेच सकता हूँ क्या, राइट? अंडरस्टैंड स्केचेस का जो शू है वो प्रॉब्ली बनता होगा 800 या 1000 रुपए में, बिकता है 4000 रुपए में. मैं किस चीज की वैल्यू क्रिएट करने से लोगों से ज्यादा पैसे मांग सकता हूँ? इट्स अमित पर्सपेक्टिव. ही कम्स इन दैट सेगमेंट वेयर ही कैन आस्क फॉर मनी. There are 5 industries जिसके लिए लोग ज्यादा सोचते नहीं है और पैसे भरते रहते हैं. One is education, people don't think so much. Second is food industry, people keep on spending. Third is liquor industry, people don't care. उसका आपका कभी भी कितना भी बाकी मार्केट डाउन हो, उनका मार्केट हमेशा हाई रहता है. Fourth is safety, जहां पर भी related to safety आता है, people don't think twice, they pay more. And last is child, right? चिल्ड्रन बेस्ड जो भी रहता है, आपके बच्चे के लिए जो भी आप सोचते हो, पीपल डोंट थिंक ट्वाइस, दे जस्ट स्पेंड मनी फॉर द चिल्ड्रन. 5 मॉडल्स और 5 इंडस्ट्रीज आर सच जहां पर इट्स अ हाई ग्रोथ मार्जिन.